This Myself, conference will Sandeep, now be recorded. the faculty of ICA Research Private Limited. Let me introduce my company first before starting this session. I am from ICA Research Private Limited, and we are the provider of some services and in the field of training like taxation and accounts, and then we are providing the job guarantee also. Right. So before jump into our session, let us consider why we should choose advanced Excel, because the session is for advanced Excel, right? So why you need to choose advanced Excel for your career? Because see, there are a couple of options, there are a couple of reasons available, but from my point of view, I am considering these 6 options for fresher also, and as well as if you are a working professional, then also you can choose advanced Excel training. Why? Because see, advanced Excel is always help to save your times. Advanced Excel is always help to do some critical works which cannot be possible with some basic sense of Excel. It's always give you a greater salary aspect. It's always giving you a better job opportunities. You no need to stuck with one kind of job. The various type of jobs in market are available for this also. So advanced Excel have various types of options, and advanced Excel has various types of reasons to choose it, right? So today our agenda will be, see, basically this 1 or 2 hour session is not sufficient to discuss all the features, discuss all the things about advanced Excel, right? But we will manage time to see something in advanced Excel. What is today's agenda? Basically, these 3 things will be teaching in this session. Number one is advanced filtering of data. Basically, I am going to show you some advanced tips and tricks to use advanced filter in your working life. As well as we are going to learn about slicer and timeline also, how to use the what is slicer and timeline and why we need to use this. Then a dashboard overview, like what is dashboard, why dashboard is created, and how we can create a dashboard, right? So directly jump into our Excel part, that is this one. So let me share my Excel screen. Okay. So right now I think my Excel screen is visible. So see, here is a data of, it's a basically a huge data. You can see total of 4,100 rows are available there. So it's basically a huge data. Within this database, we will learn about our agenda part. So what is in our first agenda? That is advanced filter. So talk about advanced filter, that why we need to use advanced filter. See, advanced filter is an option which makes something in advanced, something in Excel, so that we can analyze our database in a proper manner. Now कोई कोई बोल सकता है कि सर मेरे पास तो नॉर्मल फिल्टर का ऑप्शन है, कि मैं क्यों एडवांस फिल्टर का ऑप्शन चूज करूं? व्हाई एडवांस फिल्टर? सी बेसिकली फिल्टर ऑप्शन में हमारे पास कुछ दिक्कतें आ जाता है। किस टाइप का दिक्कत आता है? फॉर एग्जांपल, अगर मैं डेटाबेस को थोड़ा सा छोटा करूं ताकि स्क्रीन में अच्छे से फिट हो जाए, तो आप देख सकते हैं कि ये जो डेटाबेस है, इस डेटाबेस में बहुत सारा कॉलम्स भी है, राइट? एंड अगर मुझे इसके अंदर फिल्टर करना है, तो सिंपली हमें क्या काम करना होता है? सिंपली हमें कंट्रोल शिफ्ट एल, ये जो शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एल का, कंट्रोल शिफ्ट एल का शॉर्टकट की प्रेस करना है, जिसके थ्रू यहाँ पे जो फिल्टर बटन है वो फिल्टर बटन एप्लीकेबल हो जाता है। देन हमें जिस फील्ड के ऊपर फिल्टर करना है, फॉर एग्जाम्पल सेगमेंट, तो हम लोग यहाँ से अपना जो भी फिल्टर का सेगमेंट का क्राइटेरिया है उसको चूज करके ओके कर सकते हैं, राइट? सो दिस कैन बी डन विथ फिल्टर। तो सर यहाँ पे दिक्कत क्या? हम लोग इजीली इसमें से काम कर सकते हैं, हमें एडवांस फिल्टर सीखने का जरूरत क्या है? बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है। क्या प्रॉब्लम है? मान लीजिए कि आपको अभी होम ऑफिस सेगमेंट का तो चीजें देखना है, वो सही बात है, लेकिन यहाँ पे डेटा के लिए बहुत सारा डेटा दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, प्रोडक्ट नेम है, कस्टमर नेम है, एंड बहुत सारा अदर्स कॉलम्स भी है। बट आप एट ए टाइम इतने सारे कॉलम के ऊपर काम नहीं करना चाहते। अभी आपका जो मेन मोटो है, वो मेन मोटो ये है कि आप सेगमेंट वाइज या तो कस्टमर नेम या फिर प्रोडक्ट नेम के ऊपर काम करें, मतलब उसको एनालाइज करने के लिए। चाहे आपका एनालाइजिंग का कोई भी मोटिव हो, कोई भी इंटेंसिव हो, आप सिर्फ और सिर्फ अभी कंसर्न है कि मुझे कस्टमर नेम एंड प्रोडक्ट नेम इन दोनों कॉलम के ऊपर काम करना।
सो अगर आपके आंखों के सामने इतने सारे एक्स्ट्रा कॉलम्स आपके पास होंगे तो ऑब्वियसली आपका जो डेटा है वो डेटा में एनालाइज करने के टाइम आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ये एक रीजन है। दूसरा रीजन है, मान लीजिए आपको कोई एनालाइजिंग कंपैरिजन का काम करना है, फॉर एग्जांपल कि आपको होम ऑफिस सेगमेंट के साथ आपको यहाँ पे मैं एक और सेगमेंट चूज कर लेता हूँ कॉर्पोरेट। ये दो सेगमेंट के ऊपर आपको एनालाइज करना है कि दोनों सेगमेंट में आपको कंपैरिजन करना है। तब उस टाइम पे ये जो डेटा है ये डेटा बेसिकली नॉर्मल एज ए रॉ डेटा है, तो आप यहाँ पे ना तो होम ऑफिस को ठीक से इस ये कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे, ना ही आपको कॉर्पोरेट को कंपेयर कर पाएंगे। यहाँ पे एक रास्ता तो हमारे पास होता है कि मैं डेटा को शॉर्ट कर लूं ए टू जेड में, ताकि कॉर्पोरेट सब एक साथ आ जाए, होम ऑफिस सब एक साथ आ जाए। देन हम लोग स्क्रीन को स्प्लिट कर दें तो हमारा काम बन सकता है। बट उसमें भी बहुत सारा स्टेप्स, बहुत सारा फंक्शन फीचर्स, इन सारी चीजों का ज्ञान हमें जरूरत पड़े। बट वही काम हम लोग कर सकते हैं इजीली एडवांस फिल्टर के साथ, जिसके लिए बेसिकली एडवांस फिल्टर यूज होता है। अब जब एडवांस फिल्टर यूज करेंगे तब आपको कुछ रूल्स आपको मेंटेन करना पड़ेगा एडवांस फिल्टर को यूज करने के टाइम। रूल नंबर वन इज आपको एक्स्ट्रा अलग से क्राइटेरिया बनाना। रूल नंबर वन इज आपको एक्स्ट्रा अलग से क्राइटेरिया बनाना। रूल नंबर टू इज आपको जब एडवांस फिल्टर आप करेंगे तब आपका एक्टिव सीट पे आप रनिंग होना चाहिए। व्हाट डज इट मीन बाय एक्टिव सीट? एक्टिव सीट का मतलब होता है कि जिस सीट पे आप करेंटली एक्टिवेट है। जैसे मैं अभी मास्टर डेटा के नाम से सीट में हूं, तो मास्टर डेटा मेरा एक्टिव सीट है। तो आपको एडवांस फिल्टर उसी सीट में करना होगा जिस सीट में, मतलब एडवांस फिल्टर स्टार्टिंग आपको उसी सीट से करना होगा जिस सीट से आप काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं अभी इस जगह पे, तो बेसिकली बहुत सारा डेटा है, तो ऑलरेडी ये सीट बहुत सारे डेटा से भरा हुआ है, तो मैं एक नया शीट ले लेता हूँ जो है हमारा सीट वन, ब्लैंक सीट। तो मैं यहाँ पे एडवांस फिल्टर का काम करना चाहता हूँ, तो मुझे इस सीट में आके ही एडवांस फिल्टर का काम को चालू करना है। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं मास्टर सीट में चालू होके सीट वन में डेटा को फिल्टर करके लाऊं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट रूल इज कि आपको एक क्राइटेरिया बनाना है। सेकेंड रूल इज कि आपको उसी सीट से काम करना होगा जिस सीट पे आप डेटा को लाना चाहते हैं। ठीक है, अब क्राइटेरिया कैसे बनाते हैं? क्राइटेरिया बनाने के लिए सिंपली आपको जरूरत है आपका हेडिंग नेम्स, दैट मीन्स योर हेडिंग नेम एंड डेटा। व्हिच डेटा? द डेटा बेस्ड ऑन व्हिच यू वांट टू फिल्टर। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैंने लिया था सेगमेंट, तो मैं सेगमेंट और होम ऑफिस इन दोनों को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। क्यों हमेशा डेटाबेस से कॉपी करना चाहिए? क्योंकि डेटाबेस से कॉपी करने पे हमारा जो स्पेलिंग है वो एरर फ्री हो जाता है, मतलब हमारा जो स्पेलिंग है वो स्पेलिंग कभी मिस्टेक नहीं होता है। तो इसलिए हमें डेटाबेस से हमेशा कॉपी करना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो एडवांस फिल्टर बेसिकली उसके ऊपर काम नहीं कर सकता। इसलिए हमें जो भी चीजें है उसका एक चीज श्योर करना है कि हमें स्पेलिंग हमारा मिस्टेक ना हो। ठीक है, देन हमें क्या, कहाँ पे जाना है? सिंपली डेटा टैब में, एडवांस में। ये है हमारा एडवांस फिल्टर का विंडो। अब एडवांस फिल्टर यूज कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग नॉर्मल फिल्टर के जैसा काम नहीं कर सकते। इसके अंदर एडवांस फिल्टर के अंदर हम लोग नॉर्मल फिल्टर का भी काम कर सकते हैं, एडवांस फिल्टर का भी काम कर सकते हैं। तो नॉर्मल फिल्टर का काम करने के लिए आपको ये फर्स्ट वाले ऑप्शन को चेक करके रखना है। बट जो सेकेंड, मतलब अलग जगह पे अगर हमें एडवांस फिल्टर करना है तब हमें ये सेकेंड ऑप्शन को चेक करना है, राइट? कॉपी टू अनदर लोकेशन, जिसके अंदर लिस्ट रेंज में हमें डालना है जो हमारा जगह है वो जगह। बेसिकली मैंने जगह का नाम देके रखा है डेटा, फिर भी मैं फर्स्ट टाइम के लिए डेटा सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मेरा ये फुल डेटा। ठीक है, देखिए यहाँ पे डेटा का रेफरेंस आ गया, डेटा देन विद इन स्क्वायर ब्रैसेस हैशटैग ऑल। हैशटैग ऑल का मतलब है कि फुल डेटा, कोई ऐसा पार्शियल डेटा नहीं, पूरा का पूरा डेटा। क्राइटेरिया रेंज पे हमें देना है क्राइटेरिया रेंज, दैट इज दिस टू, and in copy to select this cell or any cell wherever you want to pull up your data, but make sure कि आप जो सेल सिलेक्ट कर रहे हो वो एक्टिव सीट का सेल है। ठीक है, एंड देन हिट ओके। देखो हमारा जो भी होम ऑफिस सेगमेंट का डेटा है वो होम ऑफिस सेगमेंट का डेटा हमारे पास आ चुका है, राइट? ये एक चीज है। अब इसमें किसी किसी का क्वेश्चन हो सकता है कि सर इसमें भी तो वही सेम चीज आया कि मुझे फिलहाल तो मेरा कंसर्न था प्रोडक्ट नेम एंड कस्टमर नेम, बट यहाँ पे फिर से वही सारे चीजें आया कि बाकी जो भी कॉलम्स है एक्स्ट्रा कॉलम, वो कॉलम्स यहाँ पे आ चुका है। तो हम वहां पे फिल्टर करने पे भी जो हो रहा था एडवांस फिल्टर पे भी वही हो रहा है।
तो हमारा फायदा क्या हुआ एडवांस फिल्टर करके। बेसिकली एडवांस फिल्टर का ये जो ट्रिक मैंने दिखाया ये नॉर्मल है, मतलब बेसिक है। हम अगर चाहते हैं कि प्रोडक्ट नेम और कस्टमर नेम सिर्फ ये दो चीज ही मेरे पास आए, तब हमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंट काम करना होगा। क्या करना होगा, मैं पहले यहाँ से इन तीनों चीज को कॉपी करके बाहर पेस्ट करके रख देता हूँ ताकि मैं इसको बाद में यूज कर पाऊँ। देन मैं यहाँ से जो भी डेटा है उसको कर दूंगा डिलीट। ठीक है, देन अगेन मैं इस तीनों चीज को यहाँ पे रख देता हूँ। अब मान लीजिए कि मुझे यही चीजें चाहिए कि सेगमेंट होम ऑफिस का प्रोडक्ट नेम एंड कस्टमर नेम। सेगमेंट, ये कॉलम बेसिकली मैंडेटरी नहीं है कि आप होम ऑफिस सेगमेंट का चीजें ला रहे हैं तो आपको सेगमेंट कॉलम को पुल अप करना ही पड़ेगा। बेसिकली मैं बस दिखाने के लिए कि हाँ सही तरीके से काम कर रहा है उसके लिए मैं ले रहा हूँ। आप चाहे तो इसको भी स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ इन दोनों के ऊपर या फिर कोई भी ऐसा कॉलम जिस कॉलम के ऊपर आप कंसर्न है सिर्फ वो कॉलम को यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो डेटा विद इन डेटा गो टू एडवांस, कॉपी टू अनदर लोकेशन, लिस्ट रेंज पे लिख देना है हमें डेटा, क्योंकि सिलेक्ट करने पे वही आएगा। तो मैं सिलेक्ट करूं या फिर लिखूं, दोनों से ही काम चलता है। क्राइटेरिया रेंज पे हमें लेना है दिस टू। नाउ कॉपी टू, पहले हम लोग ले रहे थे ऐसे सिंगल सेल जो था ब्लैंक सेल। बेसिकली ब्लैंक सेल लेने पे एडवांस फिल्टर फुल डेटा लाता है, मतलब डेटाबेस में जितना भी कॉलम्स है वो सारा डेटा लाएगा। बट अगर हमें कोई पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर कंसर्न है एंड हमें उसी कॉलम का डेटा चाहिए, सो व्हाट वी नीड टू डू, वी जस्ट नीड टू सिलेक्ट द डेटा लाइक दिस, कि प्रोडक्ट नेम, कस्टमर नेम एंड सेगमेंट। जो हेडिंग्स हम लोगों ने लिख के रखे थे वो हेडिंग को सिलेक्ट करना एंड हिट ओके। सी, ओनली दिस थ्री कॉलम, और कोई भी एक्स्ट्रा कॉलम नहीं आएगा इसके साथ। सेगमेंट तो मैंने बस प्रूफ करने के लिए कि हाँ होम ऑफिस बोला तो होम ऑफिस का ही चीजें आ रहा है, उसके लिए बेसिकली मैंने रखा है। अदरवाइज आप चाहे तो इसको भी स्किप कर सकते हैं। नहीं तो ये चीज अगर आप नॉर्मल फिल्टर में भी करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, बट उसमें आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा कि ये जो सारा कॉलम्स है इन कॉलम्स को हाइड करना पड़ेगा, फिर उसको अनहाइड करना पड़ेगा काम हो जाने के बाद। तो ऐसा बहुत सारा दिक्कत है। बट एडवांस फिल्टर में ऐसा कुछ नहीं है, आपका काम हो गया आप सीधा का सीधा डिलीट कर दो। क्यों, डिलीट कर देने पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो डेटा है ये डेटा मेन डेटा में कोई भी इफेक्ट नहीं दे रहा है। मेन डेटा एज इट इज उसके जगह पे है, जैसा था वैसा ही है। ऐसा नहीं कि होम ऑफिस का सारा डेटा यहाँ पे आ चुका है इसका मतलब यहाँ से होम ऑफिस का डेटा डिलीट हो चुका है। होम ऑफिस का डेटा अपने जगह पे सही तरीके से जैसा था वैसा ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। बट जो मेन चीज है वो है कि यहाँ का डेटा यहाँ पे भी है एंड उसके साथ साथ मेरा फिल्टर डेटा मेरे सामने है। तो मेरा मेन डेटाबेस अनटच पोजीशन पे है, तो वो जैसा था वैसा का वैसा है। ठीक है, तो ये है मेन चीज जिससे हम लोग एडवांस फिल्टर को सबसे ज्यादा यूज करते हैं, जिसके रीजन से। सो एडवांस फिल्टर यूज करने का मेन रीजन यही है कि हम लोग जो डेटा है उसको अलग तरीके से देखें, ताकि मेरा मेन जो रॉ डेटा है उसमें कोई छेड़खानी ना हो। दूसरा चीज कि हम लोगों का जो भी डेटा है वो जो मेरा जितना कंसर्न है, क्योंकि जब हम लोग नॉर्मली ट्रेनिंग लेते हैं सीखने के पर्पज में तब हम लोग छोटे छोटे डेटाबेस के ऊपर काम करते हैं, बट रियल लाइफ में डेटाबेस धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। अब मेरे पास अगर इतना बड़ा डेटा है तो मैं कौन से एट ए टाइम कौन से काम के ऊपर ध्यान दूंगा, वो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाता है। जिसके लिए हम लोग अपना कंसर्न, मतलब एट ए टाइम जो चीज के ऊपर आपका कंसर्न है आप उस चीज के ऊपर फोकस करने के लिए एडवांस फिल्टर का यूज। अब सेकेंड थिंग कि होम ऑफिस के साथ हमें कॉर्पोरेट भी चाहिए था, तो सिंपली क्या करना है यहाँ पे इसको चेंज करना है कॉर्पोरेट। एडवांस सारी चीजों का ही एक एडवांटेज है एक डिसएडवांटेज है। एडवांस फिल्टर का जैसे इतना सारा एडवांटेज है कि एडवांस फिल्टर अलग जगह पे डेटा लाता है, वो रॉ डेटा के साथ कोई छेड़खानी नहीं करता है। इवन वो आप जितना डेटा बोलेंगे उतना ही डेटा लाएगा, वो सब उसका एडवांटेज है। बस उसका डिसएडवांटेज क्या है कि एडवांस फिल्टर ऑटो अपडेट नहीं है। आप ऐसे चेंज करेंगे तो ये डेटा ऑटोमेटिकली कॉर्पोरेट का डेटा हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। यही एक मोस्ट एडवांटेज ये है, डिसएडवांटेज है। बट फिर भी इस डिसएडवांटेज को हम लोग मैक्रो के जरिए इसको भी ओवरकम कर सकते हैं। हम लोग एडवांस फिल्टर को ऑटोमेटिक करवा सकते हैं कि चेंज करने पे ऑटोमेटिक डेटा आ जाएगा। बट वो सब बात का चीज है, तो मैं उसको बाद में ही कंसिडर करता हूँ। तो फिलहाल मैं यही सारे हेडिंग्स को यहाँ पर भी सेम सेट करके रख देता हूँ। एंड देन आई विल गो टू डेटा, देन एडवांस, कॉपी टू अनदर लोकेशन, लिस्ट रेंज में आएगा डेटा, hashtag all, right, and criteria range पे आएगा these two, copy to में again these three, hit okay।
सो यहाँ पे हमारा आ गया सारा कॉर्पोरेट का डेटा। तो आपका जो भी डेटा था वो अभी साइड बाय साइड आ चुका है। एंड इवन उसके साथ साथ कोई ऐसा दिक्कत भी नहीं है कि मेरा कॉर्पोरेट के बीच में होम ऑफिस आ चुका है या फिर होम ऑफिस के बीच में कॉर्पोरेट आ चुका है। कॉर्पोरेट बिल्कुल अलग जगह पे है, होम ऑफिस बिल्कुल अलग जगह पे। ठीक है। अब आपका जो कंपैरिजन या फिर आपका जो एनालाइजिंग पार्ट है वो बड़े आराम से आप इसको कंफर्म जो भी काम है उसको कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ना तो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कोई रो है, ना ही डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कोई कॉलम्स है, और ना ही एक दूसरे के अंदर वो मिक्स डेटा है। दोनों डेटा अपने अपने तरीके से अलग हो चुका है। तो सिंपल बस 3-4 स्टेप का काम से ही हमारा जो डेटा है वो मास्टर डेटा से इजीली ऐसे दो अलग अलग डेटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब कोई बोलेगा कि हाँ इसको हम लोग फिल्टर से भी कर सकते हैं, ऑब्वियसली इसको फिल्टर से भी कर सकते हैं, बट एडवांस फिल्टर यूज करने पे ये जो टाइम है ये टाइम शॉर्टर हो जाता है। हमें फिल्टर में क्या करना होता है, अगर मैं फिल्टर का स्टेप्स करूँ तो फिल्टर में हमें बेसिकली जाना है सेगमेंट पे, वहां पे जाके हमें पहले चूज करना है होम ऑफिस। होम ऑफिस चूज करने के बाद जो भी डेटा आएगा उस फुल डेटा को यहाँ से कॉपी करना है, देन एक नए शीट पे जाके पेस्ट, फिर से वापस आके इस सेगमेंट को चेंज कर देना है कॉर्पोरेट, फिर से कॉर्पोरेट से हमें डेटा को कॉपी करके फिर से हमें उस सीट पे पेस्ट करना पड़ेगा। तो हमें इतना सारा काम करना पड़ता है, इतना सारा, इस काम पे अगर कहीं पर भी एक बार गलती हो जाए तो मेरा पूरा डेटा जो है वो गलत हो जाएगा। बट एडवांस फिल्टर में ऐसा कोई चीजें नहीं है। बस आप सही तरीके से एक बार हेडिंग्स का नाम लिख दीजिए, जो नाम आप लोग डेटाबेस में से कॉपी करेंगे, एंड उसके साथ साथ ऐसे बस एक क्राइटेरिया बना। ठीक है। तो जिसके जरिए हम लोग ये काम को इजीली कर सकते हैं। ठीक है। इवन हम लोग इसके अंदर कुछ बहुत एडवांस लेवल का भी काम कर सकते हैं। जैसे एक काम बताता हूं मैं, फॉर एग्जांपल अभी तक हम लोग काम कर रहे थे सेगमेंट के ऊपर। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक हेडिंग है शिप मोड, राइट। सो मैं यहाँ पे लेता हूँ शिप मोड, एंड शिप मोड को मैं कर देता हूँ इकोनॉमी। शिपिंग मोड में हमारा क्या क्या डेटा है, शिपिंग मोड में बेसिकली अगर देखा जाए तो शिपिंग मोड में हमारा इकोनॉमी है, इकोनॉमी प्लस है, इमीडिएट एंड प्रायोरिटी है। सो मैं इकोनॉमी को लेना चाहता हूँ। सो इकोनॉमी में भी मैं सारा डेटा अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मेरा सेगमेंट एंड मेरा स्टेट, सिर्फ ये दो चीज। और शिप मोड को मैं बस प्रूफ के लिए रख रहा हूँ साथ में, मुझे बस ये 3 कॉलम का डेटा चाहिए। ठीक है। अब इसमें भी ऐसा नहीं कि आपको ऐसे वन बाय वन एकदम सेम तरीके से रखना है जैसे डेटाबेस में है। आप चाहे तो शिपिंग मोड को बाद में, क्योंकि वो आपका जरूरत कॉलम नहीं है, मेन आपका मेन दो चीज है सेगमेंट एंड स्टेट। तो ऐसे आप कैसे भी आप उसको अपनी मनमर्जी अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप चले जाएंगे डेटा के अंदर एडवांस, उसके अंदर कॉपी टू अनदर लोकेशन, लिस्ट रेंज में सेम चीज, दैट इज डेटा हैश ऑल। हैश ऑल क्यों लिख रहा हूँ वो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया कि डेटा सिलेक्ट करने पे वो हैश ऑल ऑटोमेटिक आता है ताकि फुल डेटा को सिलेक्ट करें। ठीक है। क्राइटेरिया रेंज में आएगा हमारा दिस टू, एंड कॉपी टू में आएगा दिस थ्री, राइट। एंड जस्ट हिट ओके। सी, यहाँ पे डेटा तो आ चुका है सेगमेंट एंड स्टेट का, बट जो प्रॉब्लम है वो है इकोनॉमी के साथ इकोनॉमी प्लस भी आ चुका है। इकोनॉमी तो आया है ठीक है, बट इकोनॉमी प्लस भी आ चुका है, जो मेरे लिए एक माइनस पॉइंट है कि नहीं, मुझे ऐसा तो इकोनॉमी नहीं चाहिए था। बेसिकली इसका रीजन ये है कि आप अगर देखेंगे ये जो इकोनॉमी एंड इकोनॉमी प्लस है ना, इन दोनों का ही स्पेलिंग का स्टार्टिंग कैरेक्टर सेम टू सेम। बेसिकली एक्सेल एक इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है, दैट्स व्हाई इट्स थिंक दैट यूजर आल्सो वांट इकोनॉमी प्लस along with economy, that is why it's pull up the data of economy plus also. But right now we don't need economy plus, right? So what we need to do, we just need to change our criteria in a small way. Do anyone know how to change this criteria? किसी को पता है कि अगर मैं ऐसा करना चाहूँ कि नहीं इकोनॉमी लिख रहा हूँ तो इकोनॉमी ही आना चाहिए, दूसरा कोई चीज नहीं आना चाहिए? एनीवन नो? चैट पे एक बार बता सकते हो कोई, अगर किसी को पता है तो, कि किस तरीके से हो सकता है ये। नहीं पता है तो सिंपली नो लिख सकते हो, हम लोग वेट नहीं करेंगे ज्यादा देर। सिंपली अगर नहीं पता है तो नो लिख सकते हो, और अगर पता है तो एक बार मुझे आंसर बता सकते हो। ओके, मानसी को नहीं पता, ठीक है। अदर्स?
Okay, most of the candidates don't know. Abhi Parekh is saying that pen pencil wala example hai. I don't know what about what you are talking about. If you know the answer, please type the answer directly. Okay, so okay, Rami Agni is saying as wild card. Rami, can you explain? Can you unmute yourself and explain how to use wildcard over here? एक चीज मुझे इंटरेस्टिंग लगा वाइल्ड कार्ड, तो जस्ट मैं जानना चाहूंगा कि वाइल्ड कार्ड से कैसे होगा, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो एक बार, जस्ट कि इसमें चेंजेस कैसे करना है? ओके, दैट मींस यू आर जस्ट गेसिंग। ओके, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हमें चेंजेस तो करना है, बट चेंजेस कैसा करना है कि सिंपली हमें यहाँ पे कोई वाइल्ड कार्ड वगैरह ऐसा कुछ चीजें लिखना नहीं है, हमें सिंपली यहाँ पे लिखना है इक्वल्स टू, विद इन कोटेशन इक्वल्स टू, एंड देन कोटेशन क्लोज। वी नीड टू कॉन्फ़िगर आवर क्राइटेरिया इन दैट वे। सो क्राइटेरिया में हम लोग क्या किए कि इक्वल्स टू, विद इन कोटेशन इक्वल्स टू इकोनॉमी। इसका मतलब क्या है कि इसका अगर मैं इसमें एंटर मारूं तो हमारे पास जो क्राइटेरिया आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा कि इक्वल्स टू इकोनॉमी। इसका मतलब जब ये चीज हमारे एडवांस फिल्टर के अंदर एक्सप्लेन होने जाएगा तो इक्वल्स टू हम लोग बेसिकली यूज करते हैं फंक्शन या फॉर्मूला लिखने के लिए, राइट? तो उसके अंदर ये इक्वल्स टू ऑटोमेटिकली हट जाएगा, क्योंकि जब भी हम लोग फंक्शन या फॉर्मूला लिखते हैं तब हम लोग इक्वल्स टू डालते तो है, लेकिन जब आंसर आता है उसमें कोई इक्वल्स टू नहीं रहता, उसमें इक्वल्स टू के बिना आता है। तो इक्वल्स टू ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा फंक्शन एंड फॉर्मूला के तौर पे उसके अंदर। तो ये जो इक्वल्स टू है ये भी ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। एंड देन हमारे पास क्या है, कोटेशन का मतलब होता है कि एग्जैक्ट इतना ही वैल्यू। कोटेशन का मतलब होता है एग्जैक्ट इतना ही वैल्यू। तो इक्वल्स टू इकोनॉमी देने के बाद जब ये फंक्शन एडवांस फिल्टर के अंदर काम करने जाएगा तो इक्वल्स टू यहाँ से हट जाएगा एंड जो इकोनॉमी है वो सिर्फ पड़ा हुआ रहेगा। दैट मींस एक्सेल को पता चलेगा कि मुझे सिर्फ इकोनॉमी जिस सेल में लिखा हुआ है हमें सिर्फ उसी सेल का डेटा चाहिए, अदर्स कोई भी सेल का डेटा नहीं चाहिए। तो इस टाइम पे हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले तो पूरा डेटा जो है उसको डिलीट कर देते हैं, देन हम चले जाएंगे एडवांस, उसके बाद कॉपी टू अनदर लोकेशन, देन द सेम थिंग दैट इज डेटा स्क्वायर ब्रेसेस हैशटैग ऑल क्राइटेरिया रेंज पे दिस टू, कॉपी टू में दिस थ्री एंड हिट ओके। सी नाउ इट्स ओनली फॉर इकोनॉमी, इसमें और कोई तुम्हें इकोनॉमी प्लस नहीं दिखेगा। क्यों इकोनॉमी प्लस नहीं दिया? क्योंकि अभी हम लोगों ने उसको कॉन्फ़िगर कर दिए कि इकोनॉमी के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए मुझे सेल में। अब मान लो कि हमारे पास इकोनॉमी है, इकोनॉमी प्लस है, इकोनॉमी प्राइम है, इकोनॉमी प्रीमियम है, इकोनॉमी प्रो है, इतने सारा चीज है इकोनॉमी रिलेटेड, ठीक है? तब तुम उसमें या तो नॉर्मल इकोनॉमी के साथ जा सकते हो या फिर वाइल्ड कार्ड मतलब स्टार का साइन लगा के कर सकते हो। बट अगर तुम्हें पर्टिकुलर एक ही चीज चाहिए तब तुम्हें यूज करना होगा ऐसा नॉर्मल इक्वल्स टू इकोनॉमी। ऐसा बहुत सारा ट्रिक्स है जो एडवांस फिल्टर के टाइम हेल्प करता है हमें डेटा को और अच्छे से फिल्टर आउट करने के लिए। जैसे ये एक है, सेम टू सेम एक और ऐसा ट्रिक है कि अगर मान लीजिए कि मैंने कोई एक जगह का मतलब कोई एक शिपिंग मोड में डेटा लिखना भूल गया, मुझे देखना है कि कौन सा सेल है जिसमें डेटा लिखना मैं भूल गया, तो उसको भी अगर आपको फिल्टर आउट करना है तब भी आप उसको यूज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, इक्वल्स टू कोटेशन इक्वल्स टू कोटेशन। देन इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं, जिससे बेसिकली हमारा जो ब्लैंक सेल है, ब्लैंक सेल हमारे पास रिटर्न में आ जाता है, ठीक है? तो ये सारे टेक्निक्स है जिसमें जिसके थ्रू हम लोग काम कर सकते हैं। अभी जो भी सारे टेक्निक्स मैंने अभी एक्सप्लेन किया वो सारे टेक्निक हमारा एक क्राइटेरिया के साथ था। बट रियल लाइफ में जब हम लोग काम करेंगे तब ऐसा कोई मैंडेटरी चीज नहीं है कि हमें एक ही क्राइटेरिया के साथ काम करना है, राइट? हमारे पास मल्टीपल क्राइटेरिया हो सकता है। जब मल्टीपल क्राइटेरिया आता है तब हमारे पास दो लॉजिक उठ के आता है, एक है एंड, दूसरा है और। कि या तो दो कंडीशन एंड लॉजिक पे काम करेगा या फिर दो कंडीशन और लॉजिक पे काम करेगा, राइट?
अब एडवांस फिल्टर को भी समझना चाहिए कि हमें जो भी कंडीशन दिया जा रहा है वो कंडीशन एंड लॉजिक का कंडीशन है या फिर और लॉजिक का कंडीशन। बट एडवांस फिल्टर को कैसे पता चलेगा कि एंड लॉजिक का कंडीशन क्या है और लॉजिक का कंडीशन क्या है? बेसिकली उस टाइम पे एडवांस फिल्टर चेक करता है तुम्हारा अलाइनमेंट ऑफ कंडीशंस, कि तुम कंडीशंस को किस तरीके से लिखे हो इन द सेंस, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्राइटेरिया 1 लिखा, उसके नीचे लिखा मैंने क्राइटेरिया 2। दैट मीन्स ये जो दो कंडीशन मैंने एडवांस फिल्टर को दिया, एडवांस फिल्टर समझेगा ये दो कंडीशन को और कंडीशन के हिसाब से यूज करना है, मतलब और लॉजिक के हिसाब से यूज करना है। अगर मेरा कंडीशन कुछ इस तरीके का हो कि क्राइटेरिया 1 उसके बाजू में क्राइटेरिया 2, दैट मीन्स एडवांस फिल्टर सोचेगा कि ये जो कंडीशन है ये कंडीशन एंड लॉजिक पे यूज करना है, राइट। सो यहाँ पे एक टेस्ट करके देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मुझे क्वांटिटी जो है, मुझे इकोनॉमी शिपिंग मोड का डेटा तो चाहिए, बट जिसका क्वांटिटी 62 से ज्यादा है या फिर 100 से ज्यादा है। तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखा क्वांटिटी, तो मुझे यहाँ पे भी कंडीशन पे लिख देना है क्वांटिटी। अब देखो इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें क्राइटेरिया लिखने के टाइम भी क्राइटेरिया का अलाइनमेंट एकदम डेटाबेस जैसा होना चाहिए, कि डेटाबेस में क्वांटिटी पहले लिखा हुआ है शिपिंग मोड बाद में है, तो मुझे भी क्वांटिटी पहले लिखना है शिपिंग मोड बाद में लिखना है। ऐसा कोई चीज नहीं है। एडवांस फिल्टर सब कुछ एक्सेप्ट कर सकता है। बस यहाँ पे जो क्वांटिटी है उस टाइम पे ग्रेटर देन 100 लिखना है, राइट। तो ग्रेटर देन 100 लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे ग्रेटर देन का साइन एंड 100। अब ये चीज नॉर्मली होता है टेक्स्ट, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में आ चुका है। नॉर्मल अगर नंबर होता तो हमारे राइट हैंड साइड में ट्रांसफर हो जाता, बट ये चीज है तो टेक्स्ट, लेकिन एक्सेल इसको एज ए एडवांस फिल्टर के टाइम इसको बेसिकली यूज करेगा एज ए नंबर क्राइटेरिया। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्वांटिटी को भी कॉपी करके लास्ट में पेस्ट कर देता हूँ, एंड अगेन हम लोग यहाँ से जो भी डेटा है उस डेटा को डिलीट कर देंगे। जाएंगे हमारे होम सॉरी डेटा टैब, एडवांस, कॉपी टू अनदर लोकेशन, डेटा हैश ऑल, क्राइटेरिया रेंज पे अभी ये 4 सेल को यूज करना है, कॉपी टू पे ये 4 सेल एंड हिट ओके। सी ऑल द डेटा ऑफ इकोनॉमी बट द क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 100। तुम बोलोगी सर सही में क्या इतना ही क्वांटिटी पड़ा हुआ है 100 से ज्यादा? इतना ही क्वांटिटी है हमारे डेटाबेस में 100 से ज्यादा। अगर तुम यहाँ पे क्वांटिटी इसको चेक करोगे थोड़ा सा, तो देखो सारा क्वांटिटी 100 से नीचे का ही है फिलहाल। मैक्सिमम क्वांटिटी 100 से नीचे का ही है। बहुत कम क्वांटिटी ऐसा मिलेगा जो 100 से ऊपर का है। और मैंने यहाँ पे बोला ही है कि मुझे इकोनॉमी स्टेट का डेटा तो चाहिए बट 100 क्वांटिटी का, इसीलिए इतना डेटा है। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दूं, मतलब एक सेल नीचे कर दूं, अगर मैं इस पोजीशन पे इसको यूज करूं तब ये यूज होगा एज ए और लॉजिक। इसका मतलब हमने जो अलाइनमेंट किया वो कैसा किया, वो कुछ इस तरीके का किया कि ऊपर कंडीशन 1 नीचे कंडीशन 2। अब इसका बेसिकली का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप कुछ ऐसा काम करना चाहते हो कि शिपिंग मोड इकोनॉमी का क्वांटिटी कुछ भी हो चलेगा, दैट डजंट मैटर, बट क्वांटिटी 100 से ज्यादा होना चाहिए, उसका शिपिंग मोड कुछ भी हो चलेगा। मतलब मुझे ये डेटा भी चाहिए, साथ ही साथ कोई अगर अदर्स डेटा है जो डेटा इकोनॉमी का है, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमी का सारा डेटा नहीं आया, जो 100 से ज्यादा है उसका ही डेटा आया, और यहाँ पे 100 से ज्यादा का भी सारा डेटा नहीं आया, जो जो सिर्फ इकोनॉमी शिपिंग मोड का है वही सारा डेटा आया। तो मुझे अगर और कंडीशन में इसको यूज करना है, तो मुझे जो कंडीशन है उसको प्लेस करना है कुछ इस तरीके से। इस टाइम पे अगर हम लोग एक बार टेस्ट करें, तो उसके लिए हम लोग जाएंगे फिर से एडवांस, कॉपी टू अनदर लोकेशन, डेटा हैश ऑल, this 4 is my criteria range, copy to this 4. I don't Reference is not valid. आई थिंक मैंने रेफरेंस लेने में कोई गड़बड़ी किया, देखता हूँ एक बार।
सो देखो यहाँ पे अभी इकोनॉमी का भी डेटा आया है, साथ ही साथ अगर मैं नीचे जाऊँ, बहुत लंबा डेटा आ चुका है, सबके सबका इकोनॉमी का ही मैक्सिमम डेटा है। तो हमारे पास ऐसा कोई भी डेटा नहीं है जो डेटा नॉर्मली 100 से ज्यादा में बाकी का है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बेसिकली ये आया नहीं। अगर मेरे पास कोई ऐसा डेटा होता जो डेटा 100 से ज्यादा में बाकी का भी है, तो हमारे पास जो डेटा है वो आ जाता, ठीक है। बेसिकली ये सारे ट्रिक्स हैं जो हम लोग इसके अंदर एडवांस फिल्टर के अंदर यूज कर सकते हैं, ताकि हमारा जो डेटा है वो और अच्छे से फिल्टर आउट होके हमारे पास है, राइट। So this is all about advanced filter. Coming to next topic is pivot table, pivot chart with slicer, right? अब pivot table, pivot chart normally तो हमें पता ही है कि क्या होता है। pivot table, pivot chart is a analyzing tool and a graphical representer tool which represents our data in a better way. नॉर्मल टेबल जो होता है वो है यही टेबल, जो टेबल अभी आपके सामने खुला हुआ है, ये एक नॉर्मल टेबल है, बट इसके अंदर से आप अपना रिपोर्ट को अच्छे तरीके से देख नहीं सकते। अगर आपको अच्छे तरीके से रिपोर्ट देखना है तो बेसिकली आपको इसमें से भी आपको डेटा को और फिल्टर करना पड़ेगा। बट पाइवट टेबल जो ऑप्शन है वो बहुत इजीली आपका जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को तैयार कर देता है। एंड व्हाई पाइवट टेबल इज फेमस? बिकॉज पाइवट टेबल इज ऑलवेज क्रिएट रिपोर्ट इन अ समराइज एंड कंसाइज वे। पाइवट टेबल हमेशा जो डेटा रिपोर्ट होता है उसको समराइज कर देता है। समराइज इन द सेंस कि अगर मैं अभी यहाँ पे शिपिंग मोड में जाऊँ, देखो यहाँ पे मेरे पास 4 शिपिंग मोड है, राइट। इस 4 शिपिंग मोड के ऊपर अगर मुझे टोटल का फाइंड आउट करना है कि इस 4 शिपिंग मोड में टोटल सेल्स कितना है, तो मुझे यहाँ से 4 शिपिंग मोड को अलग से लिखना भी पड़ेगा, एंड देन उसके ऊपर हमें सम इफ का जो फॉर्मूला है उसको भी अप्लाई करना होगा। बट अगर हम लोग यही चीज पाइवट टेबल में करेंगे तो हमें ऐसा कुछ भी चीजें करने का जरूरत नहीं है। मतलब ना तो आपको एडवांस फिल्टर का कोई नॉलेज का जरूरत है, ना ही आपको कोई नॉर्मल सम इफ फंक्शन का जरूरत है, कुछ भी चीजें जरूरत नहीं है। सिंपली एक फीचर के नॉलेज से आपका सारा काम हो जाएगा। कैसे? सीधा पहले माउस पॉइंटर को टेबल के अंदर प्लेस करना है, देन जाना है इंसर्ट, क्लिक ऑन पाइवट टेबल। पाइवट टेबल में क्लिक करते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसका जो रेंज है वो रेंज यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा, दैट इज डेटा। न्यू वर्कशीट या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ न्यू वर्कशीट एंड ओके। ठीक है, हमारे पास एक ब्लैंक टेबल आ चुका है। अभी हमारा काम क्या था कि सेगमेंट वाइज टोटल देखना, तो सिंपली सेगमेंट के ऊपर टिक। देखिए जो हमारा 3 सेगमेंट है वो 3 सेगमेंट यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ चुका है। अगर हमारा काम फॉर एग्जाम्पल सेगमेंट नहीं है, हमारा काम शिपिंग मोड है, तो टिक ऑन शिपिंग मोड। हमारा जो शिपिंग सॉरी मैंने शिपिंग डेट कर दिया, शिपिंग मोड, शिपिंग मोड। तो यहाँ पे देखिए जो 4 शिपिंग मोड है वो 4 शिपिंग मोड आ चुका है। उसके साथ साथ आपको क्या चाहिए? टोटल, सिलेक्ट टोटल। तो यहाँ पे जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली सम अप होके आ चुका है। तो हमें ना ही एडवांस फिल्टर यूज करना पड़ा इसको निकालने के लिए, ना ही हमें सम इफ का फॉर्मूला लगाना पड़ा, सारे चीज ऑटोमेटिक हो गया। इवन अगर आपको इसको रिपोर्ट को कभी चेंज भी करना है कि मुझे शिपिंग मोड के अंदर और डिटेल्स देखना है कि शिपिंग मोड में कौन सा सेगमेंट वाइज मेरा सेल हुआ है, तो सेगमेंट को क्लिक कर दीजिए तो इसके अंदर का सेगमेंट भी आ जाएगा कि इकोनॉमी शिपिंग मोड में ये सारा डिटेल्स, इतना सारा सेल, इकोनॉमी प्लस में इतना सारा, इमीडिएट में इतना सारा, एंड प्रायोरिटी में इतना सारा। ठीक है, तो बेसिकली जो भी रिपोर्ट लेआउट है वो ऑटोमेटिकली काम कर देता है। यहाँ पे सिर्फ आपको करना है तो बस ड्रैग एंड ड्रॉप एंड क्लिकिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम क्लिकिंग से ही काम हो जाता है, बट कभी कभी क्लिकिंग से काम नहीं होता है। जैसे सेगमेंट, मैं सेगमेंट को देखना तो चाहता हूँ बट सेगमेंट को मुझे अलग अलग कॉलम्स में देखना है। सो क्लिकिंग से ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेगमेंट को अलग अलग कॉलम से देखने के लिए हमें उसको इस कॉलम नाम के फील्ड में रखना है। तो अगर मैं शिपिंग को यहाँ पे टिक करता हूँ तो बेसिकली बाय डिफॉल्ट वो रो में जा रहा है। तब हमें बेसिकली ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है कि शिपिंग मोड को यहाँ से ड्रैग करके कॉलम में छोड़ना होता है। तो हमारा जो रिपोर्ट लेआउट है वो ऑटोमेटिकली कॉलम के हिसाब से अपडेट हो जाएगा। ठीक है, इवन मैं जितना चाहे उतना यहाँ पे चीजें देख सकता हूँ, मैं पूरा चीज भी देख सकता हूँ एंड इवन अदर्स चीजें भी देख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं शिपिंग डेट पे टिक लगाता हूँ तो यहाँ पे डेट के लिए देखिए यहाँ पे 3 चीजें ऑटोमेटिक आ जाता है, ईयर, क्वार्टर, ईयर एंड क्वार्टर। हालांकि मेरा जो डेटाबेस है उसमें ईयर एंड क्वार्टर नहीं है,
यहाँ पे कहीं पर भी आपको ईयर एंड क्वार्टर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इवन मैंने कोई कॉलम को हाइड भी करके नहीं रखा जहां पे मैंने ईयर एंड क्वार्टर को अलग से कैलकुलेट किया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी जो एडवांस फिल्टर सॉरी जो पाइवट टेबल है वो हमें ईयर एंड क्वार्टर को लाने में हेल्प करता है, क्योंकि वो एक डेट फॉर्मेट है। तो मैं कोई एक साल का कितना क्वार्टर, हर एक क्वार्टर में कौन सा महीने में डिटेल्स है, क्या डिटेल्स है, वो सारा चीजें ऑटोमेटिकली देख सकता हूँ सिर्फ एक सिंगल क्लिक से। अगर हमें क्वार्टर नहीं चाहिए तो सिंपली ईयर को यहाँ से हटा दीजिए, क्वार्टर आ जाएगा सिर्फ। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे डेटा को तैयार कर सकते हैं। तो ये होता है बेसिकली पाइवट टेबल। अगर हमें इसके ऊपर एक चार्ट तैयार करना है तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ से शिपिंग मोड और इसको हटा देता हूँ। अगर मुझे चार्ट तैयार करना है तो सिंपली हमें करना क्या है कि एनालाइज टैब में जाना है, पाइवट चार्ट पे क्लिक करना है, कोई भी हमारा एक चार्ट हो उस चार्ट को, फॉर एग्जाम्पल मैं पाई चार्ट ले लेता हूँ, उस चार्ट को सिलेक्ट करके ओके कर देना। तो हमारा जो चार्ट है वो चार्ट हमारे एक्सेल शीट में ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड उसके साथ साथ ये जो हमारा जो डिटेल्स है वो चार डिटेल्स भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आप इसमें कोई भी चेंजेस करते हैं तो वो चेंजेस ऑटोमेटिकली अपडेट भी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने क्वार्टर को हटा के फिर से शिपिंग मोड को डाल दिए तो जो चार्ट है वो शिपिंग मोड के हिसाब से आ जाएगा। अगर आप शिपिंग मोड हटा के प्रोडक्ट डालते हैं तो प्रोडक्ट के हिसाब से आ जाएगा। तो आप जो चीज यहाँ पे डालेंगे उसके बेसिस पे आपका रिपोर्ट लेआउट भी अपडेट होगा एंड उसके साथ साथ आपका जो डेटा है वो भी अपडेट होगा। पाइवट टेबल में एक और एक्स्ट्रा फीचर रहता है जो है फिल्टर। बेसिकली फिल्टर का जो फीचर है, फिल्टर फीचर बेसिकली काम करता है अगर हमें कोई डेटा को फिल्टर आउट करके देखना हो। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे यहाँ पे ईयर के बेसिस पे डेटा को फिल्टर करना है, कि मुझे सारे ईयर का डेटा नहीं देखना, मुझे फिलहाल अभी 2016 का डेटा देखना है। तो व्हाट वी कैन डू, वन थिंग वी कैन डू इज ईयर को हम लोग एक्सिस में रखेंगे, देन हम लोग यहाँ से उसको फिल्टर में यूज करेंगे। या फिर दूसरा काम हम लोग क्या कर सकते हैं कि ईयर को हम लोग फिल्टर में डाल देंगे। फिल्टर में डालने पे वो हमारे टॉप में जाके एक फील्ड रेडी कर देगा जो नाम होगा ईयर्स। उसमें से हम चाहे तो जो भी हमारा ईयर है, फॉर एग्जाम्पल 2016 एंड हिट ओके, तो ये जो भी डेटा है ये डेटा हमारे 16 के डेटा के हिसाब से चेंज हो जाएगा। अगर हम चेंज करें तो 2013 एंड ओके, तो डेटा जो है वो 2013 में चेंज हो जाएगा, इस बेसिस में चेंज हो जाएगा। बट ये चीज प्रेफरेबल चीज नहीं है। क्यों प्रेफरेबल चीज नहीं है? क्योंकि जब आप ये रिपोर्ट को मैनेजमेंट को सबमिट करेंगे अपने काम के लिए, तो मैनेजमेंट का जो भी पर्सन आपका रिपोर्ट चेक करेगा उसको एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए, वो यहाँ पे फिल्टर को अप्लाई कर पाए। राइट, उसको एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए कि कैसे पाइवट टेबल में फिल्टर को चेंज किया जाए। बट ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपका जो भी ट्रेनर, आपका जो भी ये होगा मैनेजमेंट का पर्सन होगा उसको एक्सेल यूज करना आता ही होगा, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। तो आपको रिपोर्ट कुछ इस तरीके से बना के देना होता है ताकि कोई भी पर्सन, चाहे उसको एक्सेल का नॉलेज हो या ना हो, वो एटलीस्ट उसको यूज कर पाए, उसको देख पाए। राइट, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पाइवट टेबल में हम लोग दो चीजें इंक्लूड करते हैं, एक होता है स्लाइसर, एक होता है टाइमलाइन। स्लाइसर और टाइमलाइन बेसिकली काम क्या करता है, स्लाइसर और टाइमलाइन बेसिकली काम करता है कि जो टेबल है उसको और अच्छे से फिल्टर करने लायक बना देता है बटन के जरिए। कैसे? मैं पहले इस टेबल का नाम को चेंज कर देता हूँ। टेबल का नाम चेंज करने के लिए एनालाइज में जाके पाइवट टेबल 1, इसको मैं चेंज कर देता हूँ फॉर एग्जांपल P1। अब क्वेश्चन ही आ सकता है कि क्या सर स्लाइसर में ये नाम चेंज करना जरूरी है? नहीं, स्लाइसर में नाम चेंज करना जरूरी नहीं है। बेसिकली मैंने चेंज किया क्योंकि मेरे इस डेटाबेस में और भी बहुत सारे पाइवट टेबल्स हैं जो मैंने अभी तक दिखाया नहीं। तो और भी बहुत सारे पाइवट टेबल्स हैं जो दूसरे काम के लिए यूज हो रहा है, तो उसके साथ ये नाम मिसमैच ना हो इसलिए मैं नाम को यूनिक कर दिया P1। राइट, अब अगर मुझे इसके ऊपर बेस करके कोई एक स्लाइसर लाना है तो सिंपली हमें करना क्या है कि टेबल का कोई एक एरिया को सिलेक्ट करना है, go to analyze, or you can also go to insert any of these two। right, go to analyze and then select insert slicer। स्लाइसर कौन से फील्ड के ऊपर आपको इंसर्ट करना है, you can choose from all of your fields। right, so for example as I told I want year, just select year and hit OK। see, year का जो फील्ड है वो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, 2013, 14, 15, 16, 17।
राइट। अब अगर मैं यहाँ पे 13 को सिलेक्ट करूँ, सी ऑटोमेटिकली डेटा चेंज, 14 डेटा चेंज, 15 डेटा चेंज। तो जो भी पर्सन आपका एक्सेल को यूज करेगा उसको कोई ऐसा ह्यूज एक्सेल नॉलेज का जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको ये क्लिक करने का जरूरत है। तो उसको कुछ भी नहीं करना, उसको सिर्फ बैठ के क्लिक करना है अपना डिजायर्ड रिपोर्ट देखने के लिए। तो ऑटोमेटिकली उसका जो रिपोर्ट है उस बेसिस पे चेंज होता जाएगा। सो दिस इज व्हाई वी आर यूजिंग स्लाइसर। एंड व्हाट इज टाइमलाइन? बेसिकली डेट के लिए हम लोग स्लाइसर ज्यादातर टाइम यूज नहीं करते, हम लोग डेट के लिए हमेशा यूज करते हैं टाइमलाइन। वाई टाइमलाइन? क्योंकि डेट में टाइमलाइन बहुत अच्छा सा एक इजी हमें कंट्रोल यूआई देता है, ताकि हम लोग उसको और अच्छे से बाइफरकेट कर पाए। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके ऊपर एक टाइमलाइन में इंसर्ट करूं, एनालाइज में जाके इंसर्ट टाइमलाइन, ऑर्डर डेट, ओके। सो देखिए हमारे पास जो डेटा है उसमें एक ये टाइमलाइन इंसर्ट हो गया, राइट। अब इस टाइमलाइन पे ऑटोमेटिकली मंथ आता है बाय डिफॉल्ट, बट आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, ईयर्स, क्वार्टर, मंथ एंड डेज। तो बेसिकली डेट रिलेटेड फील्ड में जो स्लाइसर यूज होता है उसको टाइमलाइन बोला जाता है, क्योंकि टाइमलाइन और इजी एक कस्टमाइज यूआई हमें प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू बेसिकली हम लोग सारा जो काम है वो सारा काम को और इजीली कर सकते हैं, अगर वो डेट रिलेटेड काम है। डेट रिलेटेड में नॉर्मल स्लाइसर हम लोग यूज करना रिकमेंड नहीं करते, बट आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आप यूज नहीं करो, आप चाहो तो कर सकते हो। बट हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करते हैं टाइमलाइन, ताकि वो और अच्छे से हमें बाइफरकेट करने में हेल्प करे। कभी ईयर का जरूरत पड़ा तो ईयर, आप देखिए यहाँ पे ईयर का जरूरत है तो यहाँ पे ईयर तो दिख रहा है, बट यहाँ पे ना तो क्वार्टर है ना ही मंथ है। तो अगर आपको क्वार्टर और मंथ चाहिए तो उसके लिए अलग अलग दो और स्लाइसर लगाना पड़ेगा, बट ये टाइमलाइन एक ही स्लाइसर में सारा काम कर देगा। आपको क्वार्टर चाहिए, चलिए क्वार्टर आ गया। कौन से फील्ड, मतलब कौन से ईयर का क्वार्टर चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे फील्ड दिया हुआ है, 2013 टू 2017 सारा का सारा फील्ड दिया हुआ है। कौन से फील्ड का चाहिए? फॉर एग्जाम्पल मुझे 2014 का क्वार्टर 2 एंड क्वार्टर 3 चाहिए, 2014 का क्वार्टर 2 क्वार्टर 16 का 3 क्वार्टर का चाहिए, 3 क्वार्टर। तो आपको जैसे चाहिए आप वैसे यहाँ पे फिल्टर आउट कर सकते हैं। इसीलिए बेसिकली डेट रिलेटेड फील्ड पे हम लोग ज्यादातर टाइम यूज करते हैं टाइमलाइन। ठीक है। सो आई थिंक इतना तक, मतलब हम लोगों ने जो दो चीजें हमारे कंप्लीट किए वो दो चीजें आप लोगों को क्लियर है कि किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। नाउ कमिंग टू द लास्ट थिंग, दैट इज आवर डैशबोर्ड। Now, what is dashboard and why we need to use dashboard in our reporting system? See, basically dashboard ये होता है कि जिसके थ्रू आप सारा रिपोर्ट एक साथ में दिखाएंगे, जिसके थ्रू आप सारा रिपोर्ट एक साथ में दिखाएंगे, इसी को बोला जाता है बेसिकली डैशबोर्ड। अगर मैं अभी इस जगह में, मतलब हमारा जो ये रिपोर्ट है, अगर मैं इस जगह पे जाऊं, ये जो मेरा रॉ डेटा है, इस रॉ डेटा से बहुत सारे टाइप का रिपोर्ट तैयार हो सकता है, राइट। कि मैं चाहूँ तो यहाँ से कस्टमर के बेसिस पे रिपोर्ट कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ से जेंडर के बेसिस पे रिपोर्ट कर सकता हूँ। तो वो जो सारा रिपोर्ट है, वो सारा रिपोर्ट आपको जब मैनेजमेंट को प्रेजेंट करना था वो प्रॉपर लुक में होना चाहिए, कि दिखने देख के वो पता चले कि हाँ कौन से रिपोर्ट है, और उस रिपोर्ट से सारे तरीके का क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए, राइट। क्योंकि एक बार आप अगर आप रिपोर्ट तैयार किए तो मैनेजमेंट आपके पास दोबारा नहीं आएगा कि भाई मुझे ये रिपोर्ट दे या फिर वो रिपोर्ट दे, तेरे इस रिपोर्ट से मेरा ये कुछ क्राइटेरिया है जो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, तो मुझे एक दूसरा रिपोर्ट बना के दे। अब उतना सारा रिपोर्ट बनाने नहीं जाएंगे, तो बेसिकली इसी रीजन से हम लोग यूज करते हैं डैशबोर्ड। डैशबोर्ड क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि इस जो डेटाबेस है इसके ऊपर बेस करके मैंने एक शॉर्ट डैशबोर्ड बनाया, जो है ये, जहां पे हमारे पास देखिए सारा रिपोर्ट एक सिंगल विंडो पे हमारा है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे पास सिटी वाइज भी सेल है, मेरे पास स्टेट वाइज टोटल सेल है, मेरे पास प्रोडक्ट वाइज सेल्स का भी डिटेल्स है, शिपिंग मोड वाइज डिटेल्स है, इवन मेरे पास जेंडर वाइज, मतलब अगर मुझे कोई प्रोडक्ट का एनालाइज करना है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट मेरा मेल कैंडिडेट ज्यादा खरीदता है या फिर फीमेल कैंडिडेट ज्यादा खरीदता है, तो उसका भी एनालाइजिंग है। कौन से स्टेट पे हमारा प्रोडक्ट सेल हुआ है, वो सारा स्टेट, मतलब एक टोटल मैप चार्ट भी है, जिसके थ्रू आप देख जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं, जिसको देख के आपको पता चलेगा कौन सा स्टेट्स है। इवन एक नंबर भी है टोटल सेल का, कि टोटल सेल कितना है,
राइट। तो ये सारा चीजें आपको एक विंडो पे मिल रहा है। एंड इवन अगर आपका मैनेजमेंट यहाँ पे कोई दूसरा फॉर्मेटिंग अलाउ करना चाहे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए बहुत सारा स्लाइसर एंड टाइमलाइंस भी लगा हुआ है, राइट। थोड़ा सा बड़ा है डैशबोर्ड इसलिए मुझे छोटा करना पड़ा। यहाँ पे देखिए बहुत सारा स्लाइसर एंड टाइमलाइंस भी अलाउ किया हुआ है। अब कोई बोले कि नहीं, मैनेजमेंट मुझे बोला कि मुझे सारे प्रोडक्ट का डिटेल्स नहीं देखना, उसको सिर्फ अभी बैकपैक का डिटेल्स देखना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैकपैक के ऊपर क्लिक, ऑटोमेटिकली जो भी डिटेल्स है वो सारा डिटेल्स बैकपैक के रिलेटेड हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 13% था, अभी वो हो गया, सॉरी 100% था, अभी वो 13% हो गया। बैकपैक नहीं चाहिए, कार रैक चाहिए, कार रैक, ओके कार रैक। शिपिंग बैग चाहिए, ओके शिपिंग बैग। तो ऑटोमेटिकली जो भी आपका डेटा है, पूरा जो डेटा है वो डेटा वन शॉट में आपका रिफ्रेश होगा। एंड साथ ही साथ इसमें आप अलग अलग चीजें भी कर सकते हैं, अलग अलग चीजें इन द सेंस कि बैकपैक तो प्रोडक्ट नेम है, अब इस प्रोडक्ट नेम का मुझे कॉर्पोरेट सॉरी हाँ कॉर्पोरेट का कॉर्पोरेट सेगमेंट का डिटेल्स देखना है, तो क्लिक ऑन कॉर्पोरेट, तो आपको कॉर्पोरेट सेगमेंट का दिखेगा। कॉर्पोरेट सेक्टर का भी मुझे सारे स्टेट का डिटेल्स नहीं देखना, सिर्फ वेस्ट बंगाल स्टेट का देखना है। क्लिक ऑन वेस्ट बंगाल, तो जो भी डिटेल्स है वो सब वेस्ट बंगाल के हिसाब से हो जाएगा। मतलब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि टोटल 36,33,920 इतना रुपीस का सेल हुआ है वेस्ट बंगाल में बैकपैक प्रोडक्ट का सेगमेंट ऑफ कॉर्पोरेट। ईयर में भी कोई दिक्कत है कि ऑर्डर डेट के हिसाब से मुझे पूरे साल का ईयर थे, मतलब सिर्फ 2016 या 17 का डेटा देखना है, क्लिक ऑन सॉरी, जो डेटा है वो डेटा ऑटोमेटिकली उसके बेसिस पे अप टू डेट हो जाएगा। तो बेसिकली मेरा कहने का ये मतलब है कि हम लोग डैशबोर्ड इसके लिए तैयार करते हैं जिसके थ्रू हमारा जो भी डेटा है वो सारा डेटा एक सिंगल विंडो में सारा चीजें प्रेजेंट हो जाए। एंड इवन अगर आपका मैनेजमेंट को किसी और तरीके का रिपोर्ट चाहिए, वो रिपोर्ट को एक ही जगह से फिल्टर करके अपना डिजायर रिपोर्ट तक पहुंच सकता है। मतलब आप एक बार रिपोर्ट सबमिट करने के बाद आपके पास दोबारा आने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, आप इस तरीके से रिपोर्ट को बना के देंगे, इसी को बोला जाता है डैशबोर्ड। अब ये डैशबोर्ड बनाने के लिए ये तो सिर्फ एक चार्ट्स है। अब ऐसा नहीं कि हमेशा डैशबोर्ड में चार्ट्स आता है, कभी कभी कुछ परसेंटेज का भी चीजें आता है, कभी कभी कुछ नंबरिंग्स का भी चीजें आता है, कभी कभी एक छोटा टेबल भी आ जाता है। अगर छोटा टेबल लायक डेटा हो तो उस टाइम पे टेबल भी आ जाता है, तो वो सारा डेटा आता है। बट ये भी एक टाइप का डैशबोर्ड है। ठीक है, अभी डैशबोर्ड को कैसे प्रिपेयर किया जाए, बेसिकली इसके लिए हमें नॉलेज चाहिए सिर्फ और सिर्फ पाइवट टेबल, पाइवट चार्ट एंड स्लाइसर टाइमलाइन। अगर मैं इसका बैकएंड दिखाऊं, मतलब जिस डेटा के ऊपर बेस करके ये डैशबोर्ड तैयार है, वो है ये वाला रिपोर्ट शीट। रिपोर्ट शीट में देखिए हमारे पास एक कुछ पाइवट टेबल्स दिया हुआ है, मैंने तैयार करके रखा है। अब ये जो पाइवट टेबल्स है, बेसिकली यही पाइवट टेबल्स हेल्प कर रहा है ये डैशबोर्ड को कंट्रोल करने में। बट अगर मैं मैनेजमेंट को ये पाइवट टेबल सबमिट कर दूं, तो क्या मैनेजमेंट को रिपोर्ट पता चलेगा? कुछ नहीं पता चलने वाला इसमें से, क्योंकि ये पूरा रॉ डेटा है, इसमें से कुछ भी नहीं पता चलेगा। लेकिन इस रिपोर्ट से मैनेजमेंट को सारा चीजें पता चलेगा, राइट। तो इसलिए बेसिकली हम लोग डैशबोर्ड को तैयार करते हैं। तो चलो डैशबोर्ड को, ये जो डैशबोर्ड है इसी डैशबोर्ड को प्रिपेयर करते हैं। तो बेसिकली मैं तो सारा चीजें प्रिपेयर नहीं करने वाला, क्योंकि ये डैशबोर्ड प्रिपेयर करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं इसमें से आपको ओवरव्यू देने के लिए कुछ चीजें उठा लेता हूँ। जैसे मैं ये मैप चार्ट जो दिखने में थोड़ा सा यूनिक है, इसको प्रिपेयर करूंगा। ये जो टोटल सेल्स का अमाउंट है इसको, जो जेंडर का अमाउंट है इसको, एंड ये एक पाई चार्ट, एक लाइन चार्ट। बस इतना चीजें मैं प्रिपेयर करने वाला, एक लाइन चार्ट, एक पाई चार्ट, दोनों जेंडर, मैप चार्ट एंड ये टोटल। क्यों मैं ये टोटल वाला भी ले रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये जो सारा चीज है ये कोई सेल नहीं है। नॉर्मल यहाँ पे एक्सेल का नॉर्मल सेल्स है, वो सब छोटा छोटा सेल्स है। बट अगर आप ये सारा चीजें देखेंगे तो ये सारा चीजें कोई सेल नहीं है, ये सारा चीजें एक एक शेप है, या तो टेक्स्ट बॉक्स है या फिर एक एक शेप है। और वही सारा शेप्स ऑटोमेटिक कनेक्ट हुआ एक सेल के जरिए। नॉर्मली हम शेप को कनेक्ट नहीं कर सकते सेल के साथ, बट हम लोग डैशबोर्ड के नॉलेज से उसको कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग एक डायनामिक शेप बना सकते हैं। चलो तैयार करते हैं ये डैशबोर्ड। इसीलिए मैंने पहले बोला कि जो हमारा इस डैशबोर्ड, ये डेटाबेस में मेरा अदर पाइवट टेबल भी है। तो बेसिकली ये वो पाइवट टेबल्स है जिसका नाम मैंने चेंज नहीं किया, डिफॉल्ट नाम में रखा था, पाइवट टेबल 1, पाइवट टेबल 8, 6, 1, 2, 3, ये सारा नाम।
इसलिए मैंने वहां पे जो पाइवट टेबल्स था उसका नाम चेंज कर दिया। ठीक है, तो चलो एक बार तैयार करते हैं। तो बाकी जो अदर शीट आया था, ये दोनों शीट को मैं कर देता हूँ डिलीट। तो पहले तो हमें एक सिंगल पाइवट टेबल तैयार करना है। तो गो टू इंसर्ट, क्लिक ऑन पाइवट टेबल, सिलेक्ट डेटा एंड क्लिक ऑन न्यू वर्कशीट। एक हमारा पाइवट टेबल आ चुका है जिसका नाम है फिलहाल पाइवट टेबल 2। मैं बाद में सारे पाइवट टेबल का नाम चेंज कर दूंगा ताकि सब यूनिक रहे। अब हमें कितना पाइवट टेबल चाहिए? बेसिकली जितना चार्ट आपका होगा उतना पाइवट टेबल चाहिए। मतलब मैंने यहाँ पे डैशबोर्ड में जितना चीजें दिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 चीज दिखा, तो मेरे पास यहाँ पे 9 पाइवट टेबल्स एंड डिफरेंट डिफरेंट चीजें होगा। राइट, तो यहाँ पे हमें ये सारा चीजों को पहले क्रिएट करना है। तो एक लाइन चार्ट किसके ऊपर है? स्टेट वाइज सेल है। तो इसको मैं ले लेता हूँ स्टेट एंड टोटल। ठीक है, तो ये आ गया हमारा लाइन चार्ट। राइट, मैं तुरंत पाइवट टेबल का नाम भी चेंज कर देता हूँ ताकि हमें बाद में दिक्कत ना हो। इसका स्टेट वाइज है तो मैं इसका नाम कर देता हूँ स्टेट। फिर अभी सेम डेटाबेस से पाइवट टेबल बनाने के लिए सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करने का जरूरत होता है। बट अगर अलग डेटाबेस है तो आप ऐसे कॉपी पेस्ट से काम नहीं कर सकते। कॉपी पेस्ट करके मैंने दूसरा पाइवट टेबल ले लिया। इसके अंदर हमें करना क्या है? स्टेट को हटा देना है, हमें लेना है सेगमेंट, क्योंकि सेगमेंट वाइज मेरा पाई चार्ट बनेगा। ठीक है, फिर इसी को मैं कॉपी करके दूसरा एक और ले लेता हूँ जिसके ऊपर मेरा जेंडर वाइज दिखेगा, मतलब मेल फीमेल। तो सेगमेंट को हटा के जेंडर, तो आ गया हमारा मेल फीमेल। एंड एक लास्ट होगा जिसमें हमारा टोटल सेल्स दिखेगा। तो सी, टोटल सेल्स। तो अब टोटल सेल में मुझे सिर्फ सेल ही चाहिए, तो मैं जेंडर को हटा देता हूँ तो सिर्फ टोटल सेल पड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, अब चलिए फटाफट इसका नाम चेंज कर देते हैं। गो टू एनालाइज, ये हमारा है सेगमेंट वाइज, राइट? हाँ, तो इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ सेग। ये हमारा है जेंडर वाइज, तो इसका नाम मैं रख देता हूँ जेन। एंड ये है हमारा टोटल सेल, तो इसका नाम रख देता हूँ सेल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पाइवट टेबल्स। अब हर एक पाइवट टेबल के ऊपर बेस करके एक एक चार्ट बन जाएगा, सिंपल। अब चार्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज करता हूँ लाइन चार्ट के लिए। तो सिंपल मैं टेबल के ऊपर सिलेक्ट करके एनालाइज में जाके पाइवट चार्ट, वहां पे लाइन, हमारा जो भी लाइन चार्ट रिक्वायर्ड है वो लाइन चार्ट एंड। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ ताकि मैं एक ही सिंगल शीट पे ही डैशबोर्ड बनाता हूँ। बेसिकली ऐसा रिकमेंडेड नहीं है कि आप एक सिंगल शीट पे डैशबोर्ड बनाएं। हमेशा डैशबोर्ड अलग शीट में ही बनाया जाता है जिस शीट में सिर्फ और सिर्फ डैशबोर्ड ही रहेगा और कोई डेटा नहीं रहेगा। रिपोर्ट के लिए अलग शीट यूज किया जाता है, बट मैं फिलहाल टाइम की वजह से मैं एक ही सिंगल शीट में ही ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे ही इसको डैशबोर्ड को तैयार कर लेता हूँ ताकि मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा विंडो को साइड कर दूंगा तो हमें डेटा नहीं दिखेगा इस टाइप से। ठीक है, तो चलिए पहले चार जो डेटा है उस चार डेटा के ऊपर डैशबोर्ड तैयार कर ले, और पहले चार्ट्स को, इसके ऊपर हमारा तैयार होगा पाई चार्ट। तो सिलेक्ट पाई डोनट चार्ट एंड ओके, तो ये हो गया हमारा पाई चार्ट। देन हमें चाहिए मेल जेंडर का वो आइकन्स। तो बेसिकली मैं यहाँ से आइकन्स को कॉपी कर लेता हूँ। आइकन्स आ गया हमारे पास कॉपी होके। ये है मेल, ये है फीमेल, राइट। एंड लास्ट एक बॉक्स आएगा जिस बॉक्स में हमारा टोटल सेल्स दिखेगा। तो टोटल सेल्स के लिए हमें लेना है एक टेक्स्ट बॉक्स या फिर एक शेप। तो मैं ले लेता हूँ एक शेप जहां पे टोटल सेल्स दिखेगा। ठीक है, चलिए हमारा काम खत्म हो गया है, मतलब सारा डैशबोर्ड का रॉ डेटा हमारे पास आ चुका है। अब बस हमें इसको थोड़ा सा डिजाइन करना, मतलब दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। तो सबसे पहला चीज मैं एक काम करता हूँ कि मेरा जो बैकग्राउंड है उसको कर देता हूँ व्हाइट, या फिर आप व्यू में जाके ग्रिड लाइन को भी ऑफ कर सकते हैं, जो एक अच्छा रास्ता है, इसको भी ऑफ कर सकते हैं एज यू वांट।
चार्ट में थोड़ा सा जगह ज्यादा देने के लिए मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ डिलीट, साइड से भी इसको कर देता हूँ डिलीट, ये भी कर देता हूँ डिलीट, एंड जो भी बटन है उसको कर देता हूँ हाइड, ताकि हमारा जो चार्ट है उसमें थोड़ा सा ज्यादा जगह मिले। ग्रिड लाइंस भी अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं ग्रिड लाइंस को भी हटा देता हूँ चार्ट में जाके। ये सारा चीजें आपको चार्ट कंट्रोल में ही मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, जो टोटल है इसको मैं बस चेंज कर देता हूँ स्टेट वाइज सेल्स। ठीक है, हल्का सा एक बॉर्डर दिख रहा है, जो बॉर्डर फिलहाल के लिए मैं रख देता हूँ ताकि ये बाइफरकेट होने में हेल्प करेगा कि कौन सा चार्ट कहाँ तक है, ताकि मैं अच्छे से उसको डिजाइन कर पाऊँ। देन आता है हमारा पाई चार्ट। पाई चार्ट में भी ये सारी चीज को मैं कर दूंगा डिलीट, राइट क्लिक, रिमूव। ठीक है, ताकि पाई चार्ट में भी डेटा मिल जाए। जो हमारा आइकन्स है, अभी आइकन्स मैंने बेसिकली कहाँ से लिया, देखिए इसके लिए आपको एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन का जरूरत पड़ेगा। मतलब एक्सेल के लेटेस्ट वर्जन में इंसर्ट टैब में एक ऑप्शन आता है आइकन्स। उस आइकन के अंदर आप जाएंगे तो आपको बेसिकली इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना है उस टाइम पे, एंड यहाँ पे सर्च करेंगे मेल, तो आपको दिख जाएगा मेल का आइकन। मैंने बस यहाँ पे मेल लिया है एंड इंसर्ट। बेसिकली ये ब्लैक कलर में है, जैसे ही आ जाएगा आप ग्राफिक्स फील्ड में जाके अपना कोई भी मनपसंद कलर में उसको फिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने दो आइकन बेसिकली यहाँ पे लिया हुआ। ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसी टेक्स्ट बॉक्स के कॉपी कर लूंगा मैं, ताकि मुझे और टेक्स्ट बॉक्स लेना ना पड़े। तो ये टेक्स्ट बॉक्स बेसिकली क्या शो करेगा, हमारा परसेंटेज, कि मेल का परसेंटेज कितना है से और इसका परसेंटेज कितना है। और एक और टेक्स्ट बॉक्स जिसमें लिखा हुआ रहेगा टोटल सेल। ठीक है, चलिए सारे बॉक्सेस जो है उसको थोड़ा फॉर्मेट कर देता हूँ ताकि वो जो बैकग्राउंड है उसके साथ मैच हो जाए। आउटलाइन को कर देना है नो आउटलाइन, ग्राफिक्स फील को कर देना है व्हाइट, ताकि देख के पता ना चले कि हाँ ये सब टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक है, तो इस टेक्स्ट बॉक्स में मैं मिडिल में लिख देता हूँ टोटल सेल्स, टोटल सेल्स। ठीक है, अब ये जो भी सारा टेक्स्ट बॉक्स है इसका भी कलर को मैं ब्लैक कर देता हूँ ताकि पता चले कि हाँ ठीक है। तो ये हो गया हमारा काम। अभी बस काम ये करना है कि ये सारे जो बॉक्सेस है इस बॉक्सेस को हमें कनेक्ट करना है सेल के साथ। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं जो बॉक्सेस है उसका कलर थोड़ा सा रखता हूँ ताकि पता चले कि कहाँ कहाँ पे बॉक्सेस है। बाद में मैं उसको कलर को चेंज कर दूंगा। तो बेसिकली देखिए सबसे पहले तो आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, इक्वल्स टू, ये फीमेल का है तो फीमेल का नंबर डिवाइडेड बाय टोटल, तो हमें मिल जाएगा फीमेल का परसेंटेज। सेम तरीके से हम अगर जाएंगे मेल का नंबर डिवाइडेड बाय टोटल, तो ये मिल जाएगा हमें मेल का परसेंटेज। सिंपली दोनों सेल को चेंज कर देना परसेंटेज में, तो हमें परसेंटेज मिल गया 53 एंड 47। तो ये जो दोनों टेक्स्ट बॉक्स है इसको हमें कनेक्ट करना है इसके साथ। अब नॉर्मल मैं चाहूँ तो इसके ऊपर डायरेक्टली जाके लिख सकता हूँ 53%, बट इससे ये जो सेल है, ये जो बॉक्स है, ये डायनामिक नहीं रहेगा कि इसमें अगर कभी चेंज हुआ तो ये चीज चेंज नहीं होने वाली। तो इसके लिए बेसिकली क्या करना होता है, हमें इसके अंदर में कुछ नहीं लिखना। एक बार सिलेक्ट होने के बाद हमें जाना है फॉर्मूला बार में, जहां पे हम लोग नॉर्मली फॉर्मूलाज लिखते हैं। वहां पे जाके इक्वल्स टू एंड जिस सेल को आपको कनेक्ट करना है वो सेल का रेफरेंस, देन एंटर। देखिए अभी यहाँ पे आया कितना, 53%, मतलब जो यहाँ पे है। अगर मैं कभी इसमें कोई अलग चेंजेस भी करूं तो वो चेंजेस ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। मतलब आपका जो शेप है वो डायनामिक बन जाएगा एक सेल के साथ, राइट। अब इसको बस आपके हिसाब से फॉर्मेट कर दीजिए, आपको जैसा फॉर्मेटिंग जरूरत है, लाइक दिस, थोड़ा सा बड़ा, एंड जो फिल है उसको व्हाइट। तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। सेम टू सेम हम लोग दूसरा भी कर देंगे, इक्वल्स टू, ओ सॉरी मैंने गलत सेल को लिंक कर दिया। ये फीमेल है तो इसमें 53% लिंक होना चाहिए था, मैंने गलत सेल को लिंक कर दिया, मैं ठीक कर देता हूँ। इसमें बेसिकली लिंक आएगा G13, हाँ 47%। सो ये होगा हमारा लिंक। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा दो टेक्स्ट बॉक्स। सेम टू सेम टोटल सेल को भी लिंक करना है। टोटल सेल को किसके साथ लिंक करना है, उसका जो टोटल सेल के लिए मैंने एक अलग सा पाइवट टेबल बनाया हुआ है, उस टोटल सेल के साथ लिंक करना है। एंटर। तो ये हो गया हमारा टोटल सेल। देखिए चीजें देख के शायद लग सकता है कि इजी है, बस मुझे चार्ट ही बनाना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिलहाल तो मैं अभी काम जो कर रहा हूँ अभी दिखाने के लिए सिर्फ एक ही डेटाबेस के ऊपर, बट रियल लाइफ में ऐसा कोई मैंडेटरी चीज नहीं है कि आपका जो डेटाबेस होगा वो सिंगल डेटाबेस डेटाबेस होगा। हो सकता है आपको मल्टीपल टेबल से कनेक्ट करके मल्टीपल डेटाबेस बनाना हो, राइट। तो लास्ट जो चीज बचता है हमारे पास वो है हमारा मैप चार्ट, कि हमें इसके बेसिस पे एक मैप चार्ट बनाना है। अब मैप चार्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मतलब मैप चार्ट आप नॉर्मली पाइवट टेबल से नहीं बना सकते। नॉर्मली मैप चार्ट कैसे बनाया जाता है कि अगर मैं इंसर्ट पे अगर मैं ये जो भी सारा डेटा है ना, इस डेटा को अगर मैं यहाँ से कॉपी करूं, सिंपल यहाँ पे जाके वैल्यू के हिसाब से पेस्ट करके रख दूं, तो ये मेरा मैप चार्ट में इजीली यूज हो सकता है। मैं सिंपल जाऊंगा इंसर्ट मैप के अंदर, सिलेक्ट मैप, तो देखिए ऑटोमेटिकली जो हमारा मैप है वो मैप चार्ट जनरेट हो जाएगा। बट ये जो डेटा है ये डेटा स्टैटिक डेटा है, मतलब ये डेटा कभी चेंज नहीं होने। तो मुझे इस मैप चार्ट को लिंक किसके साथ करना है, इसके साथ लिंक करना है। अब हमारे पास लिंकिंग में प्रॉब्लम आता है। क्या प्रॉब्लम आता है? बेसिकली प्रॉब्लम ये आता है कि आप पाइवट टेबल से कभी भी मैप चार्ट जनरेट नहीं कर सकते। अगर मैं पाइवट टेबल के अंदर जाके एनालाइज में जाके पाइवट चार्ट में जाऊं और यहां से मैं मैप को सिलेक्ट करूं, तो आपको यहाँ पे दिखाएगा कि यू कैन नॉट क्रिएट अ चार्ट टाइप विथ डेटा इनसाइड ऑफ पाइवट टेबल। आप पाइवट टेबल के डेटा से कभी भी मैप चार्ट नहीं बना सकते। तो फिर कैसे बना? अगर मैं कॉपी करके लाऊंगा तो डेटा स्टैटिक नहीं रहेगा। अगर मैं पाइवट टेबल से बनाने जाऊं तो एक्सेल मुझे बनाने नहीं देगा। तब हमें जरूरत पड़ेगा एक फॉर्मूला का, जो फॉर्मूला बेसिकली एक एडवांस एक्सेल का फॉर्मूला जिसका नाम है गेट पाइवट डेटा। गेट पाइवट डेटा। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली हमें जो पहला एक काम है कि हमें ये जो स्टेट्स है इसको तो हमें सिलेक्ट करके रख देना है। यहाँ पे ये जो स्टेट्स है इसको हमें सिलेक्ट करके रख देना, क्योंकि ये स्टेट तो कभी चेंज होने नहीं वाला। तो एस टी एस टी स्टेट। अब जो सेल्स अमाउंट है, सेल्स अमाउंट के टाइम हमें क्या करना है, हमें बेसिकली यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। किसका फॉर्मूला लगाना, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। फॉर्मूला बेसिकली लगाना है हमें गेट पाइवट डेटा। ठीक है, तो गेट पाइवट डेटा नाम का जो फॉर्मूला है वो गेट पाइवट डेटा नाम का फॉर्मूला को हमें यूज करना है। अच्छा, नॉर्मली अभी ये जो मेरा विंडो है ये विंडो सबको दिख रहा है? तो मतलब जो भी मैं ये चार्ट वगैरह क्रिएट कर रहा हूँ ये सारा चीजें एक बार दिख रहा है तो मुझे एक बार चैट पे वाई लिख के बताओ ना। ओके 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 ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे तो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, गेट पाइवट डेटा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा इक्वल्स टू गेट पाइवट डेटा। गेट पाइवट डेटा यूज कब होता है? बेसिकली पाइवट डेटा यूज होता है कि कोई पाइवट टेबल के अंदर से कोई अगर वैल्यू है जिस वैल्यू को हमें यूज करना है, तब हमें गेट पाइवट डेटा फॉर्मूला का यूज करना पड़ता है। तो गेट पाइवट डेटा, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है डेटा फील्ड, मतलब पाइवट डेटा में से कौन सा फील्ड है जिसको आपको यहाँ पे लाना है। तो बेसिकली मैं लाना तो चाहता हूँ सेल्स, लेकिन वो सेल्स का नाम क्या है, टोटल। राइट, देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सम ऑफ टोटल। तो टोटल है बेसिकली मेरा डेटा का फील्ड। तो मुझे यहाँ पे डबल कोट में लिखना है टोटल। ठीक है, देन आता है पाइवट टेबल, कि कौन से पाइवट टेबल से आपको डेटा चाहिए। तो बेसिकली मुझे ये पाइवट टेबल से डेटा चाहिए। तो इसका सिलेक्शन का प्रोसेस ये होता है कि आपको बस पाइवट टेबल का स्टार्टिंग सेल को सिलेक्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग सेल। क्यों स्टार्टिंग सेल को सिलेक्ट करना है? ऐसा मैंडेटरी नहीं है, रूल बेसिकली ऐसा है कि आप पाइवट टेबल का कोई भी एक सेल को ले सकते हो। बट क्योंकि हम लोग बाद में स्लाइसर को कनेक्ट करने वाले हैं, तो हो सकता है स्लाइसर कनेक्ट होने की वजह से यहाँ पे जो डेटा है वो डेटा ना रहे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कनेक्ट किया कॉर्पोरेट का, अब हो सकता है कि मैंने सिलेक्ट किया ये वेस्ट बंगाल का सेल, अब कॉर्पोरेट इस सेल में है ही नहीं, मतलब A21 में है ही नहीं, कॉर्पोरेट के लिए डेटा छोटा हो गया, तो तब पाइवट टेबल का फॉर्मूला हमें एरर दे देगा। इसलिए हमेशा टेबल का जो हेडिंग का फर्स्ट सेल है
उसको कनेक्ट करना है, ताकि डेटा हो या ना हो हेडिंग तो कभी अपनी जगह से हिलने नहीं वाला। इसलिए प्रेफर ये होता है कि आप फर्स्ट सेल को कनेक्ट करो, बट रूल मेनली है कि आप कोई भी सेल को ले सकते हो, ठीक है। देन आता है हमारे पास फील्ड, दैट मीन्स इसके ऊपर कौन सा फील्ड देखना है, तो मुझे क्या देखना है, स्टेट। तो मैं यहाँ पे डबल कोट में लिखूंगा स्टेट। एंड देन आता है आइटम। आइटम के लिए मैं यहां से आइटम लूंगा कि मेरे यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको लेके आओ। देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। देखिए अभी आपका जो टोटल है, ये नंबर और ये नंबर, देखिए फिलहाल दोनों सेम टू सेम है। और अगर मैं इस फॉर्मूला को नीचे ड्रैग कर दूं तो यहाँ पे जो नंबर्स है वही नंबर्स मुझे यहाँ पर भी मिल गए। अब क्योंकि ये कोई पाइवट टेबल का डेटा नहीं है, तो मैं इजीली इसके बेसिस पे एक मैप चार्ट बना सकता हूँ। जो मैप चार्ट इसके साथ कनेक्ट रहेगा, मतलब ये अपडेट होने पे ये भी ऑटोमेटिक अपडेट होगा, ठीक है। तो चलो मैप चार्ट बना लेते हैं। लास्ट चार्ट हमारा, सिलेक्ट द होल डेटा, गो टू इंसर्ट, मैप, मैप चार्ट। तो ये बन गया हमारा मैप चार्ट, ठीक है। तो इसको भी हम लोग अपने एक अच्छे पोजीशन पे प्लेस कर देते हैं, ताकि देख के डैशबोर्ड एक अच्छा सा लुक दे। ये मुझे जरूरत नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये आ गया हमारा मैप चार्ट। बाकी जो भी स्लाइसर्स होगा वो स्लाइसर्स मैं इस जगह पे कनेक्ट करूंगा, ठीक है। अच्छा, मैप चार्ट जब मैंने बनाया, ये मैप चार्ट पे एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, आपको यहाँ पे एक आइकन आई जैसा दिख रहा है, राइट। क्योंकि एक्सेल इंटेलिजेंट एक सॉफ्टवेयर है, तो एक्सेल ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है कि इस मैप चार्ट में क्या गलतियां हैं। अगर आप इस आई परसेंटेज में सिलेक्ट करेंगे, देखिए आपको यहाँ पे दिखा रहा है, वी प्लॉटेड 72% ऑफ योर लोकेशंस फ्रॉम योर स्टेट डेटा विथ हाई कॉन्फिडेंस। मतलब कि आपका जो भी डेटा था उसमें से 72% डेटा हमने सही तरीके से आइडेंटिफाई कर लिया। बाकी डेटा को क्यों नहीं कर पाया? बेसिकली बाकी डेटा इसलिए नहीं कर पाया, शायद मेरे इसमें कोई ना कोई स्टेट में स्पेलिंग मिस्टेक है, क्योंकि मैप चार्ट एकदम एरर फ्री डेटा के ऊपर काम करता है। तो अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो काम नहीं करेगा। तो हम लोग देखेंगे बाद में कि कैसे इसको हम लोग फिक्स कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इसको रख देते हैं ऐसे ही नॉर्मल। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली तैयार करना है हमारा जो स्लाइसर्स है। तो कोई भी एक चार्ट को सिलेक्ट करो, एनालाइज टैब में जाओ, इंसर्ट स्लाइसर में जाओ। फॉर एग्जांपल मैं 2-3 स्लाइसर ही लेता हूँ, क्योंकि जगह शॉर्ट है तो मैं 2-3 स्लाइसर ही लेता हूँ। फॉर एग्जांपल स्टेट, ताकि स्टेट को चेक कर पाऊँ, सेगमेंट, प्रोडक्ट नेम, ठीक है। ये तीनों का स्लाइसर, ये तीनों का स्लाइसर आ गया हमारे पास। अब स्लाइसर्स का जगह छोटा है तो मैं इसको कॉलम में डिवाइड कर देता हूँ। राइट क्लिक करके हम लोग चले जाएंगे साइज एंड प्रॉपर्टीज। साइज एंड प्रॉपर्टीज में हम लोग नंबर ऑफ कॉलम्स को इंक्रीज कर देंगे, ताकि हमें थोड़ा सा फ्लैट स्लाइसर मिल जाए। तो हर एक स्लाइसर का ही मैं नंबर कॉलम जो है उसको बढ़ा देता हूँ, ताकि जो स्लाइसर है वो फ्लैट हो जाए। एंड ये आता है हमारा लास्ट स्लाइसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सारा स्लाइसर। अभी अगर ये मैं स्लाइसर में क्लिक करूं तो देखिए फिलहाल जो स्लाइसर है वो इसके ऊपर काम कर रही है, पाई चार्ट। अच्छा, पाई चार्ट में मैंने परसेंटेज नहीं लगाया, तो बेसिकली पाई चार्ट का जो परसेंटेज है वो परसेंटेज भी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। परसेंटेज बेसिकली मैंने किसके ऊपर किया है, सेगमेंट के ऊपर ना। सो मुझे यहाँ पे पाई चार्ट पे सेगमेंट का जो टोटल परसेंटेज है वो टोटल परसेंटेज को क्रिएट करना है। परसेंटेज कैसे क्रिएट होगा? परसेंटेज क्रिएट करने के लिए सिंपली मैं लूंगा यहाँ से ग्रैंड टोटल का सेल, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारा टोटल सेल एंड एंटर। तो ये हो जाएगा हमारा परसेंटेज, ठीक है। तो 5%, ये हो जाएगा बेसिकली हमारा परसेंटेज। अगर मैं इसको स्लाइसर को बंद कर दूं तो 100%। कोई भी एक के ऊपर सिलेक्ट करो तो उस स्टेट के हिसाब से कितना परसेंटेज है, तो यहाँ पे कोई भी स्टेट पे जाओ तो उस स्टेट के हिसाब से कितना परसेंटेज है वो हमें यहाँ पे शो मिल जाएगा। बेसिकली यही हमारा मेन मोटो था।
अब इसी को ऐसे ही एक कोई एक शेप के साथ बस कनेक्ट कर देना है, इक्वल्स टू दिस एंड एंटर। तो ये हो गया हमारा स्लाइसर का, सॉरी पाई चार्ट का परसेंटेज। ठीक है, तो अच्छा 100% में जगह छोटा पड़ रहा है, जगह को बढ़ा देता हूं। ठीक है, तो अभी अच्छे से हमारा जो भी परसेंटेज है वो परसेंटेज भी काम कर रहा है, जो भी हमारा मेल फीमेल का जेंडर है वो भी बहुत इजीली काम कर रहा है। फिलहाल देख के लग नहीं रहा कि मेल फीमेल का जेंडर हमारा काम कर रहा है, और ना ही हमारा बाकी चीजें काम कर रहा है, क्योंकि मैं अगर यहाँ से कोई भी स्टेट को सिलेक्ट करूँ तो वो स्टेट यहाँ पे अपडेट होना चाहिए था हमारे मैप चार्ट पे, बट वो नहीं हो रहा है। अब उसका रीजन क्या है? बेसिकली इसका रीजन ये है कि मैंने पाई चार्ट को सिलेक्ट करके ये सारा चीजें लाया था, इसी वजह से जो स्लाइसर्स है वो सिर्फ और सिर्फ इस पाई चार्ट के साथ कनेक्टेड है, बट हमें ये स्लाइसर को बाकी चार्ट के साथ भी कनेक्ट करना है। उसके लिए रास्ता क्या है? उसके लिए हम लोग राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, गो टू रिपोर्ट कनेक्शन। तो देखिए आपको यहाँ पे सारा का सारा चार्ट दिख जाएगा, जो भी चार्ट हमारे इस सीट में मौजूद है। अब बेसिकली ये सारा चार्ट मेरा पिछला डैशबोर्ड का चार्ट है, टेबल है, तो मैं इसको कनेक्ट नहीं करूंगा। मैं नीचे से ये जो नाम चेंज किया हुआ है इस नाम चेंज को कनेक्ट कर दूंगा जो शीट 3 में दिया हुआ है, एंड ओके। सेम चीज मैं करूंगा रिपोर्ट कनेक्शन। अच्छा, रिपोर्ट कनेक्शन का नाम अगर आप पुराना वर्जन का ऑफिस यूज करते हैं, मतलब 2010 या फिर उससे पुराना, तो आपको मिलेगा पाइवट टेबल कनेक्शन के नाम से। 2013 से उसका नाम चेंज हुआ है रिपोर्ट कनेक्शन। तो अगर आप पुराने वर्जन में काम कर रहे हैं तो मेक श्योर कि उसका नाम है पाइवट टेबल कनेक्शन, ऐसा रिपोर्ट कनेक्शन ढूंढने मत जाना उस टाइम पे। मैं सारा जो स्लाइसर्स है वो सारे स्लाइसर को कनेक्ट कर दूंगा चार्ट के साथ। अभी देखिए हमारा जो चार्ट है वो सही तरीके से कनेक्ट हुआ है, कि अगर मैं वेस्ट बंगाल सिलेक्ट करूँ तो वेस्ट बंगाल कनेक्ट हो रहा है, साथ ही साथ हमारा जेंडर मेल फीमेल भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करूँ तो स्टेट भी कनेक्ट हो रहा है, साथ ही साथ जेंडर भी चेंज हो रहा है, एंड टोटल सेल्स तो एज यूजुअल चेंज हो ही रहा है, क्योंकि टोटल सेल्स का कनेक्शन चेंज हो रहा है। अब ये जो चार्ट है देखिए, इसमें अभी चार्ट में देखिए प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? जयपुर, जयपुर मेरा कनेक्ट नहीं हुआ है। अगर मैं यहाँ से चूज करूँ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ भी देखिए हाईलाइट नहीं हुआ। बेसिकली मुझे पता है ये सारा चीजें, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब इसमें मेन रीजन क्या है कि छत्तीसगढ़ क्यों हाईलाइट नहीं हुआ? आंध्र प्रदेश हाईलाइट हो रहा है, वेस्ट बंगाल हाईलाइट हो रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ हाईलाइट नहीं हो रहा है। बेसिकली इसका रीजन है कि जरूर मेरा ये छत्तीसगढ़ नाम का स्टेट है, इसका स्पेलिंग मिस्टेक है। अगर मैं स्पेलिंग देखूं, देखिए एच यहाँ पे एक्स्ट्रा है, बेसिकली एच नहीं होना चाहिए था। तो ठीक करने का रास्ता क्या है? मुझे मास्टर डेटा पे जाना है, अपना स्टेट 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 कॉलम पे जाना है, कंट्रोल एफ। मुझे पहले यहाँ पे इसका स्पेलिंग मैं लेके आता हूँ डायरेक्टली यहीं से, छत्तीसगढ़, कंट्रोल सी, मास्टर डेटा, कंट्रोल एफ, रिप्लेस। किसको रिप्लेस करना है? छत्तीसगढ़ को रिप्लेस करना है। किसके साथ रिप्लेस करना है? एच को बस मैं हटा देता हूँ क्योंकि एच मेरा गलत है। रिप्लेस ऑल, तो हमारा 10 रिप्लेसमेंट हो गया, एंड ओके। तो अगर मैं अभी इसमें जाऊं तो बेसिकली मेरे यहाँ पे अभी ऑटोमेटिक तो अपडेट नहीं होगा, क्योंकि पाइवट टेबल ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होता है। तो मुझे क्या करना है? रिफ्रेश, रिफ्रेश ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा चार्ट है वो छत्तीसगढ़ में अप टू डेट हो चुका है। किसके हिसाब से? छत्तीसगढ़ के हिसाब से। तो मुझे यहाँ पे भी उसका नाम को चेंज कर देना है छत्तीसगढ़, क्योंकि अभी वो छत्तीसगढ़ हो चुका है। ठीक है, अभी देखिए अगर मैं अभी इस टाइम पे छत्तीसगढ़ को सिलेक्ट करूँ तो देखिए हमारा छत्तीसगढ़ भी हाईलाइट हो रहा है। तो जो जो स्टेट यहाँ से हमारा हाईलाइट नहीं हो रहा, जो जो स्टेट हमारा यहाँ से हाईलाइट नहीं हो रहा था, जैसे कोचिन, ये भी हाईलाइट नहीं होगा, क्योंकि जरूर इसका स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है। अब गूगल करके देख सकते कोचिंग का स्पेलिंग क्या है, देन आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो बेसिकली जो जो स्टेट यहाँ से स्पेलिंग मिस्टेक है वो सारा स्टेट यहाँ पे हाईलाइट नहीं होगा, और इसी रीजन से मैप चार्ट में ये ऑप्शन आ रहा है कि अभी देखिए 78% हो गया, पहले 72% था। क्यों? क्योंकि अभी मैंने इसको ठीक कर दिया। तो अभी भी ऐसा कुछ चीजें है जिसका हाईलाइट नहीं हो रहा है, तो आपको बस उसको सिलेक्ट कर करके एक बार देख लेना है। जैसे जयपुर नहीं हो रहा है, गोवा हो रहा है, गोवा, उत्तर प्रदेश वो भी हो रहा है, कोचीन नहीं हो रहा है, दिल्ली,
दिल्ली भी हो रहा है, छोटा सा हो रहा है दिल्ली भी। वेस्ट बंगाल तो हो ही रहा है। उदयपुर, उदयपुर में भी नहीं हो रहा है। आई थिंक कहीं ना कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक जरूर है, जिसकी वजह से हमारा जो मैप चार्ट है वो कनेक्ट नहीं होता। तो बेसिकली ये हो गया हमारा डैशबोर्ड रेडी। सो इसको बोला जाता है बेसिकली डैशबोर्ड। अब अगर आप ये रिपोर्ट किसी को प्रेजेंट करेंगे तो वो इस रिपोर्ट को इजीली अपने मनमर्जी वे में एक्सेस भी कर पाएगा, अपने जो भी चीजें हैं उसके बेसिस में काम भी करवा पाएगा, सारा चीजें उसके लिए पॉसिबल है। ठीक है, तो ये इसको बोला जाता है बेसिकली डैशबोर्ड, राइट? तो I have done with my part. Do you guys have any query? If you have any query, then please right now chat me and send the chat so that I can understand and address it. If not, you can say no, sir, I don't have any query. And Sanchita ma'am, I have done with my part. So if you have anything to say, then you can proceed. So guys, do you have any query? Okay. Sanchita ma'am, can you hear me? Hello. Sanchita ma'am, can you hear me? Okay, we don't have any query. Others, Krunal, Kuldeep, do you have any query in total session? Yagni, Yogesh. Okay, Sanjita ma'am, can you hear me? Are you here? Kuldeep, okay, that's fine. You can reach me through ICA. Basically, I didn't recognize you. Are you an existing student of ICA or not? If you are not, then you can reach me through ICA, right? So if you have any query, you can directly call Sanjita ma'am also, or you can call any ICA staff, then you can reach me through them, right? That's your go ahead and practice yourself. If any queries happens, then I will obviously assist you. Basically, ma'am is on another call, so that's why he is not coming. Just wait for 5 minutes, then we will conclude our session. So as of now,
I've seen you a lot of things regarding dashboard and as well as in advanced filter and other things. So go ahead and practice yourself, right? And if you have any query, then I have just putting my phone number in chat box. You can reach me out with this number, or else you can also reach out ICA for me. That also can find, right? So thank you guys. Thank you for attending this session. Uh, Take care and goodbye. Yes, Sandeep sir, very good afternoon, sir. Yeah, yeah, sure. Hello. Yeah, your Hello. session is over, sir. Yes, sir. Because Session is Sanchita over. ma'am, she has facing some internet issue, so that's why she is not available in this meeting. So, I want to ask the other participants. So please type in the chat box about today's webinar, and if you are a current student of ICA EduSkills Private Limited or not, so please just write down in the chat box, please. Guys, you are the students of ICA or otherwise existing students of ICA, or just you show your interest to join this webinar. So please write down in the chat box. Okay, no problem. So no issue. I think we have your contact details and email address. So Sandeep sir, after this session, please, if possible, then please send a video recording to all the participants or video recording to Amit sir. Then he can send this video recording to today's participants. And okay, guys. So many thank you, Sandeep sir, and to deliver this kind of beautiful session. If we arrange this kind of session like topic of on the basis of the topic of Excel or advanced Excel or QuickBook and rest of the important topic which is very much important for accounts career, then we will inform you guys, and please be focused with our Instagram page and our Facebook page, because this is the only digital media which where we can post our daily activities and upcoming seminars and workshops. So okay sir, thank you. If your session is closed, then we can wrap up the session. Okay, sir. Thank you very much.
recently होता है कि क्या कर डाउनलोड कैसे होता है मुझे पता नहीं। कैसे किया ऑप्शन देगा डाउनलोड का मैं मोबाइल में नहीं दो जन होगा दो जन दो संदीप के वेबिनार दो बाकी सब इंदर को वही बोला रविंद्र घर में एक ये ले लो, क्या नाम है ब्रॉडबैंड पूरा भाई पूरा तो मोबाइल सब बिगड़ गया मोबाइल सब बिगड़ गया इतना इंटरनेट खर्चा हो रहा है तुझे क्या लगता है कि गोटो मीटिंग है मीटिंग से कम इंटरनेट चलता है ये?